Hello friends, welcome to my channel BioSimplify, and today's my topic is life process. लाइफ प्रोसेस मीन्स हमारे वो बेसिक फंक्शन जो हमें अर्थ पे मेंटेन अपने आप को मेंटेन करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं. दिस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस. तो सिंपल इसकी डेफिनेशन है द बेसिक फंक्शन परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन अर्थ. This is a simple definition, and another definition is all living things perform certain life processes like growth, excretion, respiration and circulation. All the processes, the respiration, digestion, which together keep the living organism alive and perform the job of body maintenance are called life process. This is the contain of life process: first growth, digestion, respiration, circulation and excretion. First we need to a food for a growth. हमें अपनी growth के लिए किसकी requirement होती है? Food की, nutrition की. First we take the food, intake the food for a growth and food is digest. Then after digestion food respiration होता है because with the help of respiration energy is released, and after energy release, energy circulate entire part of the body with the process of circulation, and waste part जो है वो excretion के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है. All are content of life process. Next, first, this is growth. So we need a food for a growth. तो means is nutrition. हमें किसकी requirement होती है? Nutrition की. तो first nutrition in plant. Plant are autotroph and can make their own food. Plant अपना खाना खुद बनाते हैं with the help of sunlight. Then nutrition of animal. Animal are heterotroph जो अपने खाने के लिए other resources पे depend होते हैं like animal and plants. Depend on plants or other animal of food. Simple, this is a heterotrophic mode of nutrition in living organisms. First, holozoic, saprophytism and parasitism. Heterotrophic means जो अपने खाने के लिए दूसरी sources पे depend है. For example, human being and animals. First, holozoic nutrition. Simple, whole-like structure means mouth, permanent और temporary, जिसके अंदर food intake होता है, inject होता है, then digest होता है. Simple organisms feed are injecting a solid organic matter which then they digest and absorb in the body. For example, human, animal and insectivorous plants. This process is holozoic nutrition. हमारे अंदर whole like structure means mouth जैसी एक temporary या permanent structure होती है जो food को intake करती है, inject करती है. Then next is सैप्रोफिटीज. सैप्रोफिटीज वो एनिमल जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिज से लेते हैं, डिके मैटर से लेते हैं, इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंजाई, डाइजेस्ट द फूड एक्सट्रीमली बिफोर द न्यूट्रिएंट और द एब्जॉर्ब. मीन्स ये अपना फूड डेड ऑर्गेनिज से लेते हैं. देन नेक्स्ट इज पैरासिटिज्म. पैरासिटिज्म न्यूट्रिशन मीन्स ऑब्टेन न्यूट्रिएंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज, जो अपना खाना लिविंग ऑर्गेनिज से लेते हैं. दिस The parasite obtain nutrient by the living on or in a body of the host. यानी ये एक इनको अपनी लाइफ के लिए होस्ट की, अपने फूड के लिए होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये अपने फूड को इनटेक करते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्लाइज, लाइस एंड टेपवॉर्म. ये एक्सो और एंडो पैरासिटिम्स होते हैं जो अपने फूड को लिविंग ऑर्गेनिज से लेते हैं. नेक्स्ट इज ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन. जो प्लांट के अंदर होता है वो किस प्रोसेस से होता है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसाइज मीन्स प्रोडक्शन ऑफ फूड. प्लांट अपना फूड जो बनाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. सिंपल डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस: प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल. प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. The product is formed as sugar C6H12O6, then 6 molecule of oxygen liberated in environment. तो सिंपल यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्लोरोफिल के साथ मिलकर प्रेजेंस ऑफ लाइट क्या बनाते हैं? मोनोमर ऑफ स्टार्च. इट मीन जो शुगर है इसके बहुत सारे कंपोनेंट एक साथ ज्वाइन होते हैं, देन स्टार्च बनाते हैं और प्लांट के अंदर जो फूड है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है. सिंपल, दिस इज अ ग्रीन पार्ट मीन्स लीफ जो होती है इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से जो सनलाइट है वो ट्रैप होती है, और सनलाइट ट्रैप होने पर इससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं
then electron release the energy form of ATP, then help to the splitting of water को break करते हैं H ion and ऑक्सीजन प्लांट से बाहर चले जाते हैं. H ion help to the formation of ATP. ATP is the currency of energy. और ATP NADPH ये क्या करते हैं फिर फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर फूड बनाते हैं. इट मीन स्टार्च फॉर्म्ड करते हैं. बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द टू टाइप फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकेंड, दो रिएक्शंस होती हैं जो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करती है और एक एटीपी फॉर्म करके फूड बनाती है. बेसिकली फूड जो बनता है वो नाइट में बनता है और जो एनर्जी रिलीज होती है एटीपी की फॉर्म में वो डे में होती है. तो इट मीन there are the two type of reaction in reaction of the when a plant making their own food, light reaction and dark reaction. डार्क रिएक्शन में वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अपना फूड बनाता है, स्टार्च बनाता है. सिंपल absorption of sunlight energy by the chlorophyll. नेक्स्ट इज स्टोमेटा. स्टोमेटा बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं फूड के बनाने में. फर्स्ट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा. आपको मैं इसका कलर्ड स्ट्रक्चर शो करती हूँ. दिस इज क्लोज स्टोमेटा एंड दिस वन इज ओपन. ये सनलाइट के प्रेजेंस में ओपन हो जाते हैं. देन परफॉर्म द फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैसेज. इट मीन कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है, देन ऑक्सीजन बाहर जाती है द टाइम ऑफ सनलाइट. दिस इज क्लोज स्टोमेटा. जब सनलाइट प्रेजेंट नहीं होती तो इनके पोर क्लोज हो जाते हैं और नो एक्सचेंज ऑफ द गैसेस. फर्स्ट स्टोमेटा पोर आर प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स and function of stomata exchange a gas O2 and CO2 and loss a large amount of water during the transpiration and help into a flow of water. It mean जब प्लांट के अंदर एक्सेस में वाटर फिल हो जाता है, एक्सेस में प्लांट एब्जॉर्व कर लेते हैं वाटर को, तो एक्स्ट्रा अमाउंट को जो बाहर निकालते हैं वाटर वो स्टोमेटा के थ्रू निकलता है, स्टोमेटल पोर. उस प्रोसेस को हम ट्रांसपिरेशन प्रोसेस बोलते हैं. सिंपल द लॉस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रांसपिरेशन हेल्प इन अप फ्लो ऑफ वाटर. इट मीन जो ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है किसकी हेल्प से होता है? स्टोमेटा की हेल्प से होता है. नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अमीबा. ये 1 2 3 4 5 स्टेप में हुआ है. फर्स्ट अमीबा इंजेक्ट द फूड. फर्स्ट अमीबा क्या करता है? इंजेक्शन ऑफ फूड इंजेक्ट करता है. देन फर्दर सेकेंड प्रोसेस जो है वो उसमें फूड डाइजेस्ट हो जाता है. देन थर्ड प्रोसेस में जो फूड है वो एब्जॉर्व हो जाता है. देन फोर्थ प्रोसेस में एसिमिलेशन हो जाता है. देन फिफ्थ में इजेशन, वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाता है. फर्स्ट अमीबा कांटेक्ट विद द फूड और वो अपने अंदर सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीड बनाता है प्लांट फूड के कांटेक्ट में आने के लिए. और होल लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज सूडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर फॉल्स फीड बनाता है जिससे वो फूड को इंटेक करता है. दिस प्रोसेस कॉल्ड इजेशन. इजेशन मीन्स इंटेक द फूड. सेकेंड आफ्टर इजेशन फूड इज डाइजेस्ट. फूड पार्टिकल्स फूड वैक्यूल के अंदर जाकर वो डाइजेस्ट हो जाता है. दिस इज डाइजेशन. देन फर्दर थर्ड इज डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब इनसाइड द सेल and after digestion energy is released. This and after energy release the cells use energy. This process is assimilation. तो नेक्स्ट इज फोर्थ प्रोसेस. यहाँ पर जो एनर्जी है वो रिलीज हो गई है, देन एब्जॉर्प्शन रिलीज हो जाती है फॉर एक्टिविटी ऑफ सेल. देन फर्दर लास्ट प्रोसेस जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव आउट हो जाता है बॉडी से बाहर, सेल से बाहर. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन. Now this is the holozoic nutrition of amoeba. तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग. तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर अ नेक्स्ट टॉपिक. थैंक यू.